Namaskar, I am Vigya Divedi and I welcome you all to today's edition of Bureaucrats India Dialogue. Today we have with us Dr. Nidhi Patel, IAS. Dr. Nidhi Patel, IAS is a 2018 batch officer currently serving as the Additional Deputy Commissioner in Bilaspur, Himachal Pradesh. Born and brought up in Sangam Nagri, Prayagraj, Uttar Pradesh, Dr. Nidhi completed her MBBS and MD in obstetrics and gynecology from IMS, Banaras Hindu University. During her senior residency at Lady Hardinge Medical College, Delhi, she developed an interest in the UPSC and successfully cleared the exam in her first attempt. During her tenure at Bilaspur, she played a key role recently in developing the state's first space lab and model Anganwadi centers. Additionally, during her posting as SDM in Una, her team established a free library for aspirants, providing them with all the facilities free of cost. Dr. Nidhi has a special inclination towards working in education, health, and social sectors. We warmly welcome you, ma'am, and look forward to your insights. Thank you. I also take this opportunity to introduce Dr. Navneet Anand, Editor-in-Chief, Bureaucrats India. Dr. Anand is a media and communications professional with an experience of over 23 years in journalism, research, academics, and corporate sector. A doctorate in communications from the prestigious Jawaharlal Nehru University, Dr. Anand has worked with leading newspapers, including the Indian Express, the Times of India, and the Pioneer. He is also the founder of India's leading communications advisory and PR firm, Grey Matters Communications. He is a commentator, blogger, and columnist, and writes on a range of media, social, political, and economic issues. Now I request Dr. Navneet Anand to please carry forward the conversation. Over to you, sir. Thank you, Vigya. Thank you very much for the great introduction. And Dr. Nidhi Patel, such a great pleasure to have you with us today in this edition of Bureaucrats India Dialogue. And this is personally very gratifying, Dr. Nidhi. You know, we started this Bureaucrats India with a mission of celebrating good governance, celebrating positivity, and celebrating stories. Sir, and with good effect. Thank you for agreeing to be a panelist today for our special show. You know, this Bureaucrats India Dialogue is dedicated to officers like you who work tirelessly to ensure citizens' public service delivery for citizens of various parts of the country. Dr. Nidhi, as Vigya said, is a doctor turned administrator. और कितनी खुशी की बात है, आपने पहले अटेम्प्ट में डॉक्टर साहब, you know, you cleared civil services. How difficult, I mean, what was the inspiration? कैसे आपको लगा कि I have to become an IAS or I have to join civil services and then start working towards it? Because I know medicine studies is very, very hectic, requires a lot of hard work, long hours. उसमें समय निकाल के अपने आप में एक अनूठा सफर रहा आपका और पहले अटेम्प्ट में. डॉक्टर निधि. डॉक्टर आनंद, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी एंड आई मस्ट से दैट प्लेजर इज ऑल माइन टू बी हियर. और आपने मुझे इनवाइट किया, ये प्लेटफॉर्म दिया एक बहुत पॉजिटिव डिस्कशन के लिए, तो मैं उसके लिए आपका आभार व्यक्त करती हूँ. और जैसा कि आपने सवाल किया कि बीइंग सच मतलब आफ्टर अचीविंग सो मच इन अ मेडिकल फील्ड कैसे ये शिफ्ट हुआ, और ये तो ये एक बड़ा ट्रेडिशनल क्वेश्चन है जो ज़्यादातर एक मेडिकल स्टूडेंट से पूछा जाता है जब वो शिफ्ट करके आईएएस में आते हैं. बट मेरा केस थोड़ा यूनिक इसलिए हो जाता है क्योंकि मेरी जर्नी काफ़ी उधर लंबी हो चुकी थी. एमबीबीएस कर चुकी थी मैं, एमडी कर चुकी थी, फिर मेरा सीनियर रेसिडेंसी ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला था. इट वॉज जस्ट फ्यू मंथ्स लेफ्ट. तो मुझे बीच में लास्ट ईयर ऑफ माई सीनियर रेसिडेंसी और बीइंग इन दिल्ली, तो आप और स्पेशली कमिंग फ्रॉम इलाहाबाद, तो एक माहौल तो शुरू से ही रहता है
यूपी के इलाहाबाद और आसपास के जिलों में कि यूपीएससी की प्रिपरेशन या स्टेट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन, तो वो एक घर में माहौल था। और जब बड़े हो रहे थे हम लोग, जब स्कूलिंग चल रही थी या फिर जब एमबीबीएस हो रहा था, तो ये डिस्कशन उठता रहता था कि एक बार यूपीएससी देना है। एक शौक होता है उधर के बच्चों में कि हमें एक बार आईएएस का एग्जाम जरूर देना है और देखना है कि कैसा होता है ये परीक्षा, क्योंकि इतना यूपी में स्पेशली इतना ज्यादा क्रेज है। ऑल ओवर इंडिया ही है, बट स्पेशली जहां से मैं आती हूँ, मैंने बचपन से ही वो क्रेज देखा है कि सिविल सर्वेंट्स होने का मतलब क्या होता है और उसके साथ आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो जब मेरी मेडिकल की पढ़ाई पूरी तरह से हो गई और मैं काफ़ी सिक्योर स्पेस पे पहुंच गई, तो मुझे लगा कि अब मुझे एटलीस्ट अपना वो सपना भी एक बार पूरा कर लेना चाहिए और एक बार मुझे इस परीक्षा को देखना चाहिए कि इसमें क्या होता है। और इतना जो नाम है इसका, इतना टफ एग्जाम होता है, तो एक बार हम ये भी देख लेते हैं। ऑलरेडी इतने सारे एग्जाम्स दिए हुए हैं। तो फिर उसके बाद कुछ हमारे बैचमेट्स और सीनियर्स भी जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हमारे एमबीबीएस में सीनियर्स थे, और एमबीबीएस में जो हमारे बैचमेट थे वो ऑलरेडी इंडियन पुलिस सर्विस में या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में थे। तो उनसे भी बात कभी हुई तो उन्होंने भी बोला कि तुम दे के देखो, यू हैव दैट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीक, तो हो जाएगा। तो उन्होंने भी एक कॉन्फिडेंस जगाया। और फिर क्योंकि हम दिल्ली में थे तो एक राइट प्लेटफॉर्म तो था ही, राइट समय भी था, एक अटेम्प्ट देना था, तो दे के हमने देख लिया। और उसके अलावा मुझे लगता है गायनी के फील्ड में जो मेरा एक्सपोजर हुआ, स्पेशली बच्चों और महिलाओं से संबंधित, उसने भी काफी मोटिवेट किया और मुझे लगा कि बहुत स्कोप है अभी इस फील्ड में, इसके बियॉन्ड जाके भी कुछ करने का। मतलब आप पॉलिसी के रूप में जब आप डेफिशिएंसी पाते हैं, तब आपको लगता है कि सिर्फ एक प्रोफेशन में सीमित रह के तो ये काम उतनी तरह से होलिस्टिकली नहीं हो पा रहा है। जैसे बहुत ही गरीब तबके के जो हमारे मरीज आते थे, चाहे वो बीएचयू हो, जिसको पूर्वी एम्स बोला जाता था, तो एक गाड़ी आती थी रात में बिहार से, रात को 4 बजे, सुबह 4 बजे। उसमें इतने सिख और इतने गरीब मजदूर, गरीब परिवार की महिलाएं आती थी। तो लगता था कि इतनी दूर से आ रहे हैं तो हेल्थ में और भी कुछ होना चाहिए। तो एक अंदर से था कि इसके बियॉन्ड भी कभी मौका मिलेगा तो करेंगे। तो अब जब इस फील्ड में आ रहे हैं, इस प्रोफेशन में आ रहे हैं, तो हमें भी रियलाइज हो रहा है कि बहुत पोटेंशियल है और हेल्थ सेक्टर में और किसी भी सेक्टर में हम जाके काम कर सकते हैं। तो मेडिकल लाइन में वो एक दायरा सीमित हो जाता है कि आप डेफिनेटली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट एक सीमित दायरे में रह के कर रहे हैं। तो जिनमें भी शौक है, पैशन है, उसके बियॉन्ड जाके कुछ करने का, तो आई थिंक यूपीएससी इज द राइट प्लेटफॉर्म, जो आपको पूरे सर्विस में एक लंबा टेन्योर मिलता है और अच्छा स्पेस देगा आपको डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में जहां आप काम करना चाहते हो। और अगर अच्छा आपका विजन है, अच्छा बैकग्राउंड है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप टू परफॉर्म। तो इस विजन के साथ इधर आए हैं और देखिए कितना कितना नाइस, कर बहुत पाते हैं। इंस्पिरेशनल है आपकी स्टोरी। बिकॉज हम लोग तो सुनते रहते हैं, देखा है हमने। आई जी, ऑल्सो कम फ्रॉम अ रीजन वेयर देयर वाज लॉट ऑफ दिस क्रेज अबाउट सिविल सर्विसेज, एंड राइटली सो, यू नो, राइट, बिकॉज the डेफिनेटली। length and breadth of service delivery that you can do by being a civil servant in services. जी, Being a civil servant is absolutely humongous. बहुत अच्छा। ये जनरली हम सबसे लास्ट में सवाल पूछते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग इस बात का सिलसिला शुरू किए हैं तो पहले ही पूछ लेंगे कि आपकी क्या टिप्स होंगे वैसे लोगों को जो सिविल सर्विसेज लिखना चाह रहे हैं, including some doctors who may be aspiring to become an IAS, IPS, or whichever officer, you know, civil service, civil servant. हम्म। आ, क्योंकि मेरा टेन्योर बहुत छोटा था, मैंने बहुत कम समय मुझे मिला था यूपीएससी देने के लिए, उसके बाद भी मेरा क्रैक हो गया, तो मुझे लगता है स्ट्रैटेजी ठीक रही होगी, तभी ये जी। एग्जाम निकल गया। सॉरी टू इंटरप्ट, बट मेरी जो टीम ने रिसर्च किया उन्होंने यही बताया कि आपके पास हाँ, बहुत कम समय था, बिल्कुल। और दैट और वाज और ये मेजोरिटी लोग, जब मैं बोलती हूँ किसी इंटरव्यू में, तो वो यकीन नहीं करते कि अरे सिलेक्शन के बाद सब ऐसे ही बोलते हैं। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैं थर्ड ईयर फेज में थी सीनियर रेसिडेंसी के, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज जो है, उसमें सीनियर रेसिडेंसी गायनी डिपार्टमेंट में बहुत हेक्टिक है, क्योंकि पेशेंट लोड बहुत ज्यादा है। हार्डिंग जो है ऑब्स एंड गायनी के लिए जाना जाता है, तो उधर के दिल्ली और आसपास के एनसीआर के बहुत पेशेंट्स आते हैं। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट सारा मैनेजमेंट होता है, तो काफी वहाँ भीड़ होती है। तो उसमें मैं एसआरशिप में पढ़ाई करना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो रहा था मेरे लिए, मतलब न्यूज़पेपर भी मेरा फिनिश नहीं हो पाता था। तो अल्टीमेटली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर मैंने रिजाइन कर दिया। मैंने 1 मंथ की नोटिस दी और मेरा नोटिस पीरियड 31 अक्टूबर था, 30 अक्टूबर था।
तो मैंने उस दिन रिजाइन, तो अक्टूबर के बाद से जो समय मिला मुझे वो मैंने पूरा का पूरा अपनी तैयारी में डाल दिया। तो मेरा जो स्ट्रैटेजी था कि मैंने बहुत सीमित पढ़ा, बहुत कम पढ़ा और सटीक वही पढ़ा जो सिलेबस में जिस चीज की बात हो रही है। और कुछ टॉपर्स का मैंने वीडियोस देखा और कुछ जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ, और उन टॉपर्स का भी वीडियोस देखा जिनका मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद क्रैक हुआ। तो दोनों के जो प्लस पॉइंट्स है वो मैंने उठाए और उससे अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई कि मेरे पास समय कम है तो मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे मुझे था कि मेरी स्पीड अच्छी है तो मुझे राइटिंग प्रैक्टिस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, और इतना ज्यादा स्पीड हो जाती है हम लोगों की कि स्पीड का तो कोई इशू नहीं था। तो मुझे अपने प्लस पॉइंट पता थे और नेगेटिव पॉइंट ये था कि टाइम कम था। तो मैंने अपना मेडिकल ऑप्शनल ही मेरा जो है ऑप्शनल मैंने मेडिकल साइंस रख दिया। तो उस हिसाब से मेरा जो है ऑलरेडी थोड़ा बहुत तो मेडिकल साइंस आपका जो सब्जेक्ट है वो प्रिपेयर्ड ही था, क्योंकि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो बच्चों से मेरा यही है, स्टूडेंट से एस्पिरेंट से, कि अपनी स्ट्रैटेजी अपने हिसाब से बनाइए, दूसरे की स्ट्रैटेजी से बॉग डाउन मत होइए कि वो राइटिंग प्रैक्टिस कर रहा है तो आधे बच्चे दिन रात आंसर ही लिख रहे हैं। अब जैसे मैं इलाहाबाद से आती हूँ तो वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट मुझे रीच करने की कोशिश करते हैं कि दीदी कैसे पढ़ना है क्या नहीं। तो अभी वो बहुत ही ट्रेडिशनल स्टाइल में पढ़ रहे हैं और टाइम बहुत आगे बढ़ गया है, तो उनको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी और ये गैजेट्स और ऑनलाइन सिस्टम को अपनाना पड़ेगा। उधर के बच्चे क्या है, अभी तक वो किताबी सिस्टम में घुसे, उन्हें आप मोटी बुक दे दीजिए एंड दे विल बी वेरी हैप्पी कि हाँ मैं इसको पढ़ के खत्म कर दूंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अब समझना होगा कि ज्यादा पढ़ने से नहीं होगा, कंटेंट आप पढ़िए और सीमित पढ़िए, जैसे आप रिवाइज ज्यादा से ज्यादा करिए। तो मेरा फरवरी के बाद मेरा रिवीजन शुरू हो गया था, क्योंकि मैंने इतना कम पढ़ा और उसी कम टाइम में मैंने फटाफट रिवाइज भी कर लिया और ज्यादा चीजों में, ज्यादा नोट्स में मैंने टाइम वेस्ट नहीं किए, कोचिंग के नोट्स वगैरह। आप ओरिजिनल चीजें पढ़िए, ऑथेंटिक चीजें पढ़िए, गवर्नमेंट की वेबसाइट से पढ़िए। गवर्नमेंट की जो भी स्कीम लॉन्च हो रही है, तो आप पीआईबी है, पीआरएस है, आपका PRS.org है, आपका सब कुछ रिसर्च ऑनलाइन मिल जाता है और गवर्नमेंट ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट्स पे मिलता है। तो इधर उधर कोचिंग सेंटर्स की नोट्स पे ज्यादा ना भागे, कुछ अच्छे नोट्स मिलते हैं तो ले लें। और बहुत ज्यादा किताब के से मोह हटा के अब थोड़ा सा ऑनलाइन ज्यादा आप रिसर्च करें। उससे क्या है कि आप एकदम अपडेटेड रहेंगे और एक ही चीज कई बार आपकी नजर में आएगी और अल्टीमेटली वो आपके दिमाग में चली जाएगी और एग्जाम में उसको आप टाइमली अप्लाई कर पाएंगे, लिख पाएंगे और इंटरव्यू में अच्छे से बोल पाएंगे। तो किताब से थोड़ा सा मोह कम करते हुए कम से कम पढ़ें और समय का बढ़िया स्ट्रैटेजी बनाएं कि आपको हफ्ते में कितना खत्म करना है, महीने में कितना खत्म करना है और साल में कितनी बार रिवाइज कर लें। तो उससे आई थिंक आपका 7 to 8 months में, 9 months में तैयारी अच्छी हो जाएगी। वंडरफुल। हम लोग जेएनयू में 3-3 साल पढ़ते रहे, काश आप मिली होती पहले। तो जी, नहीं, बहुत बहुत प्रैक्टिकल टिप्स दिए आपने। आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बेनिफिट मेनी और यंगस्टर्स। मैं आपको बताऊं, जब मैं दिल्ली में मुझे लोग मिले तो सबने बोला कि अभी तो तुम तैयारी करो, अगले से अगले वाला प्रीलिम्स देना। मैं कहा मेरे पास टाइम नहीं, मुझे इसी प्रीलिम्स को देना है। तो लोग विश्वास ही नहीं करते थे कि अभी अभी कैसे दे लोगे आप इतना, अभी ये प्रीलिम्स के लिए तो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी, आप नेक्स्ट ईयर वाले में देना। तो लोग एक ऐसा डरा देते हैं, एक ऐसा माइंडसेट बना दिया है, वहां माहौल ऐसा है कि एक फर्स्ट अटेम्प्ट में तो होना ही नहीं है। तो उस वजह से भी बच्चे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेके आराम आराम से पढ़ रहे होते हैं। आप टारगेट ही बनाइए कि मुझे एक ही अटेम्प्ट में निकालना है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो वेस्टेज ऑफ टाइम है, डिस्ट्रैक्शन है, वो कम हो जाएगा और आप उसी कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ लेंगे। दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। इनफैक्ट वन नेवर थॉट, लगा कि 4 है, चौथे तक आईएएस बन जाएंगे, उसके पहले शायद ये सबसे, आई थिंक ये सबसे गलत तरीका है सोचने का। और मेरे बाद यू वोंट बिलीव, मेरी ही बैचमेट, शी इज आल्सो एमडी गायनी, शी कॉल्ड मी जब मेरा सिलेक्शन हुआ कि अरे, शी इज फ्रॉम बिहार, शी इज फ्रॉम पटना। तो शी कॉल्ड मी अब कि अरे निधि मेरा बड़ा मन था यार, मैं कहा दे दो तुम। फिर उसने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया एंड शी गॉट द होम कार्डर एंड शी इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। तो उसने भी ओह, पूछा स्ट्रेटेजी क्या रखना है। मैंने कहा बस इतना इतना ही पढ़ना, आप इसके बियॉन्ड ज्यादा मत जाना। आप दिल्ली में जा रहे हो, फिर यू विल गेट कंफ्यूज, आपको बहुत लोग मिलेंगे ज्ञान देने के लिए, ज्ञान नहीं लेना है, ट्रस्ट मी। यूपीएससी में एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं चाहिए, जितना सिलेबस है आप उतना ही ज्ञान अर्जित कर लें, बहुत बड़ी बात है। तो अपना टाइम बिना वेस्ट करते हुए आप बस उस, आई थिंक शी आल्सो क्रैक्ड, उसको भी उसको फिर भी 11 महीने 12 महीने मिल गए थे, बिकॉज जून टू जून पूरा टाइम मिल गया था। तो शी क्रैक्ड द एग्जामिनेशन। और अल्टीमेटली वही हमने भी रियलाइज किया कि ये एग्जाम आराम से एक अटेम्प्ट में निकाला जा सकता है, प्रोवाइडेड आप स्ट्रैटेजी ठीक रखिए, डरिए मत।
ग्राफ एस शेप्ड रहता है, कभी आप ऊपर जाएंगे, कभी नीचे आएंगे, कभी डरेंगे भी, कभी डिप्रेशन में भी जाएंगे, बट क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि आपने रिविजन किया हुआ है, चीजें आपको याद आ रही है, तो अल्टीमेटली आप एस में ऊपर भी जाएंगे। तो और 100 में से मुझे लगता है 80 बच्चे पढ़ नहीं रहे होते हैं वहां पे, तो आपको एनीवेज लीड है, वो 20 ही बच्चों में आपका कंपटीशन है। 100 में से 80 नहीं पढ़ रहे हैं, वो न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ रहे हैं, उनको इंटरेस्ट ही नहीं डेवलप हो रहा है। तो अगर आप एक इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हैं तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो कभी नंबर से डरने की जरूरत नहीं है। वी हैव क्रैक्ड, मतलब इंटर के बाद से एग्जाम ही एग्जाम दिए हैं मैंने, तो एक चीज मुझे सीखने को मिली कि आधे बच्चे पढ़ नहीं रहे होते हैं। तो आप पढ़ रहे हैं, आप सिंसियर बच्चे, आपका हो जाएगा। तो कैसा रहा बचपन आपको? कौन घर में बोलता था पढ़ने को ज्यादा? नहीं, मैं लकी रही हूँ उस मामले में कि मेरे घर में पिताजी माताजी बहुत ही एजुकेशन ड्रिवन है, बड़े नॉर्मल बैकग्राउंड से है। हमारा जो पैतृक है वो सब, फादर का अभी भी किसान फैमिली है, अभी भी गांव में है। फादर गॉट जॉब, तो वो सरकारी नौकरी में आए तो वो इलाहाबाद आ गए। मदर इलाहाबाद की थी, तो इलाहाबाद में ऑलरेडी एक एकेडमिक माहौल है। आप अगर आपको ये जानकारी हो तो वो ऑलरेडी एक एजुकेशन हब के रूप में यूपी में जाना जाता है, बिकॉज ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अगल बगल के गांव के लोग आते हैं और वहां अपने सपने संजोते हैं, पढ़ते हैं और अपने सपने साकार करके वहां से जाते हैं। चाहे वो इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी को कभी एक जमाना था जब आईएएस की फैक्ट्री कहा जाता था, तो वो माहौल है, उसकी मिट्टी में ही है, थोड़ा सा एकेडमिक परस्यूट वहां के बच्चों में रहता है। बट एक घर में भी डेफिनेटली पिताजी थे, तो उनका भी शौक था कि बच्ची मेरी डॉक्टर बन जाए, क्योंकि आईएएस तो बहुत डिस्टेंट ड्रीम हो जाता है। लेकिन माय मदर वाज वेरी कि नहीं नहीं, डॉक्टर तो ठीक है लेकिन कभी ना कभी आईएएस का एग्जाम तो देंगे। अच्छा। हाँ, बट मतलब डेस्टिनी थी कि शी डाइड व्हेन आई वाज इन हाई स्कूल। शी हैड अ हार्ट अटैक और शी कुडंट सी दिस थिंग। बट माय फादर वाज वेरी परसिस्टेंट कि नहीं, आगे पढ़ना है, आगे बढ़ते जाओ और पढ़ाई में एक्सीलेंस ढूंढो। तो वो एक दिमाग में था कि नहीं नहीं, ये पिताजी और माताजी का ये एक सपना तो पूरा करना है। तो आई थिंक फैमिली में भी सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, स्पेशली लड़कियों को, फीमेल चाइल्ड को। अगर आप एक अच्छा माहौल देते हैं और एक विजन के साथ अगर उसकी परवरिश करते हैं, तो बच्चे भी आई थिंक इक्वली माँ बाप के लिए रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं, और वो भी पलट के आपको एक सक्सेस के रूप में आपका भी सपना साकार करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बोलूंगी, जिनके घर में बच्चियां हैं तो उनको आप बेटों से कम मत समझिए, उन पे भी आप उनको भी बोलिए कि आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो और हमारा नाम रोशन करो। नहीं, मेरी बेटी है, मैंने उसको बोला कि अब तुम साइड में बैठ के सुनते रहो, 9th क्लास में है और वो सुन रही है। और मैंने बोला उसको, दिस मैंने इज टारगेट दिया है कि आइए। आई थिंक 9th-10th में जब आप जाते हैं, यही आपका एक सही समय है जब आप बच्चे को एक ना, जब मेरे पिताजी बोलते थे कि ये उम्र एक कच्चे घड़े समान है, इस घड़े को जैसा आकार दोगे वो फ्यूचर में वैसा ही पक्का होके सबको अपना सर्विसेज ऑफर करेगा। तो इस एज में अगर बच्चों को सही दिशा दिखा दी जाए, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे फ्रेंड्स हो। हमारा ग्रुप भी बहुत अच्छा था स्कूल में, हम बड़े कॉम्पिटिटिव बच्चे थे कि नहीं नहीं यार ये कर, बड़े नंबर्स बहुत ज्यादा हमारे हाई फाई नहीं आते थे, बट हम लोग बड़े कॉम्पिटिटिव थे कि हाँ मस्ती भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। फिर मेडिकल कॉलेज में गए, वहां भी वही हमारा स्पिरिट था कि नहीं पढ़ना भी है साथ में। हम लोग सोशली भी बड़े एक्टिव रहते थे, तो वो भी बहुत जरूरी है। मुझसे किसी बच्चे ने पूछा था कि आंसर को यूपीएससी में मैच्योरिटी से कैसे लिखते हैं, मतलब इतना इतना एंगल्स कैसे डाल लेते हैं आप लोग। तो मैं कहा भैया इसके लिए तो आपको छोटे पर से ही थोड़ा सा सोशली दिमाग लगाना पड़ेगा। हर विजन पे आपका एक ओपिनियन होना चाहिए, हर इशू पे, चाहे वो महिला रिलेटेड इशू हो, चाहे कुछ भी हो, इकोनॉमी हो, रिजर्वेशन रिलेटेड इशू हो। सोसाइटी में इतने इश्यूज हैं, तो आपका छोटे पर से विजन डेवलप होना चाहिए कि आपको बहस करना आना चाहिए, आपके अपने व्यूज होने चाहिए, हर इशू पे आप प्रोज एंड कॉन्स समझ सके, लिख सके। तो वो माहौल घर से शुरू होता है, वो माहौल आपके माता पिता से शुरू होता है, आपके दोस्तों से शुरू होता है। तो मैं लकी रही हूँ कि मुझे शुरू से ही वो माहौल मिला, तो उस हिसाब से माइंड डेवलप हुआ। और वो माइंड जब सोचते हैं आप, जी आप जब बोलते हैं, तो आपके उत्तर में ही, आपके बातों में दिख जाता है कि हाँ एक थोड़ा सा हटके तरीका है सोचने का या लिखने का। तो यूपीएससी में आई थिंक आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वहीं पे बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि इस आंसर राइटिंग को, लोगों को लगता है कि बहुत अच्छी इंग्लिश लिख देंगे या बहुत अच्छी जिस भी लैंग्वेज में वो एग्जाम दे रहे हैं तो उससे नंबर मिलते हैं। तो नहीं, फ्लावरी इंग्लिश से बिल्कुल नंबर नहीं मिलते। ये मैं बताना चाहूंगी, डरते हैं बच्चे कि यार मेरी इंग्लिश कमजोर है,
हम बहुत अच्छी इंग्लिश लिख ही नहीं पा रहे हैं, तो इंग्लिश पे नंबर मिलते ही नहीं है। आपके मार्क्स मिलते हैं कि आप कंटेंट को किस तरह उठा रहे हैं, किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं और उसकी बैकिंग कैसे कर रहे हैं। बैकिंग इन अ सेंस कि आप क्या किसी स्टडी से उसको बैक कर रहे हैं, किसी ऑथेंटिक फिगर से, मतलब गवर्नमेंट ने जो फिगर रिलीज किया उससे बैक कर रहे हैं, या किसी अच्छी संस्थान की कोई स्टडी है उससे अपने आंसर को बैक कर रहे हैं, तो उस पे आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो यूपीएससी में आंसर राइटिंग भी एक कला है। और अगेन मैं कह रही हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में लोग आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे, तो उतना कंफ्यूज नहीं होना है। और आंसर को इस तरह लिखिए जिस तरह से गवर्नमेंट की जो मैगजीन्स आती हैं वो जिस तरह से आर्टिकल को लिखते हैं। आप लोग तो बहुत अनुभवी हैं आनंद जी। आप जैसे आप लोग अपना आर्टिकल न्यूज में लिखते हैं तो शुरुआत किसी एग्जाम्पल से करते हैं, फिर उसको किसी डेटा से सजाते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि अपना ही ओपिनियन आप दे रहे हैं, आप साथ में उसको बैक भी करते हैं। तो यही मैं बच्चों से भी बोलना चाहूंगी कि अपने आंसर को बैक करिए, सिर्फ अपना ओपिनियन मत डाल दीजिए। बिकॉज जो आपका कॉपी करेक्ट कर रहा है वो उसको फर्क नहीं पड़ता कि आप ही उस टॉपिक पे क्या सोच रहे हैं, उसको फर्क पड़ता है कि आपने उस पर कितना गहन रिसर्च किया है, कितना उसको पढ़ा है और ऑथेंटिक अच्छी जगहों से पढ़ा है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ऑनलाइन ज्यादा पढ़िए, सिर्फ एक बुक पे निर्भर मत रहिए। और ऑनलाइन में भी गवर्नमेंट से संबंधित जितनी अच्छी वेबसाइट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे उनसे पढ़ते रहिए, तो आपका टॉपिक बड़ा होलिस्टिक हो जाएगा और आप बहुत सुंदर तरीके से लिख पाएंगे। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं बिलासपुर की बातें, एक बहुत ही प्रभावशाली प्रतिभावान आईएएस पदाधिकारी डॉक्टर निधि पटेल। और कैसे इन्होंने सिंपल स्टेप्स लेके और आईएएस की परीक्षा पहले अटेम्प्ट में क्रैक की। और ब्यूरोक्रेट्स इंडिया का हमेशा ये प्रयास रहता है कि आप तक ऐसी बहुत सारी कहानियां लाएं और उससे आप प्रेरणा ले सकें। बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं, रीडर हैं, जो हमारे प्लेटफॉर्म को bureaucratsindia.in को इसलिए देखते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी प्रेरणादायी स्टोरी, कहानियां मिलती हैं। और डॉक्टर निधि पटेल जैसे बहुत सारे पदाधिकारी, डॉक्टर निधि पटेल जैसा मैंने बताया डॉक्टर हैं, और अभी और इनसे चर्चा हो रही है आज के ब्यूरोक्रेट्स इंडिया डायलॉग में। Wonderful, Dr. Patel. Thank you very much for these very practical tips. Now, going ahead with our next segment, which is about your work that you have done. Again, uh, can you tell us more about the Visit to TNEGA Chennai to study AI-based app, which helps in screening of cataract by paramedical staff at the doorstep? जी, we got to know about this app which they created. It is a e-Parvai app. ये तमिलनाडु ई गवर्नेंस एजेंसी है, इन्होंने एक ऐप डेवलप किया था। वो भी एक सीनियर आईएएस ऑफिसर थे जिन्होंने ये एजेंसी वहाँ स्टार्ट की थी। इट्स लाइक गवर्नमेंट का ही एक विंग है जो स्पेशली टेक्नोलॉजी ड्रिवन और सर्विसेज प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है। और हमने जब उनके बारे में पढ़ा और उनके इस ऐप के बारे में, उसकी सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी और उसका आउटकम कैसा रहा, तो हमने उनको कांटेक्ट किया एंड दे वर वेरी ग्रेशियस टू वेलकम अस टू देयर एजेंसी एंड फाइनली वी वेंट देयर। और हमने उसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस किया, हैंड्स ऑन उस एप्लीकेशन भी देखा कि कैसे एक उस ऐप के माध्यम से वो कैटरैक्ट पेशेंट्स को डिटेक्ट करते हैं। और ये जो ऐप यूज करते हैं ये उनके फील्ड लेवल वर्कर यूज करते हैं, जिसको हम आशा वर्कर कहते हैं। कि हमारे जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसमें आशा वर्कर ही गवर्नमेंट के जो प्रायोरिटी स्कीम्स को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, डोर टू डोर सर्विसेज दे के। तो जो हमारे दूरगामी के जो जहाँ पे दुर्लभ एरियाज हैं, तो ऐसे लोगों तक पहुंच के आशा वर्कर जो है, जो एल्डरली लोग हैं, हॉस्पिटल नहीं आना चाहते अलग अलग रीजन से, किसी को हॉस्पिटल जाना एक इशू लगता है, या उनके घर में कोई है नहीं जो उनको अस्पताल लेके आए और विजन उनका लगातार कमजोर हो रहा है, तो उनसे वो कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं और उसके बाद उस ऐप के माध्यम से दोनों आंखों का फोटो लेके उससे वो डिटेक्ट करते हैं कि ये किसको कैटरैक्ट है और किस ग्रेड का कैटरैक्ट है। और अगर वो स्क्रीनिंग में पॉजिटिव आ जाता है तो फिर उसकी हॉस्पिटल में जो है विजिट कराई जाती है और वही आशा वर्कर उसको कोऑर्डिनेट करती है उस विजिट को। अल्टीमेटली उसको अपॉइंटमेंट दिया जाता है और कैटरैक्ट की मोतियाबिंद की सर्जरी की जाती है। तो उस ऐप को हमने यहाँ भी इम्प्लीमेंट करना चाहा, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास अच्छा खासा डेटा है और एआई का यूज कर रहे हैं वो इस ऐप में। तो हमने चाहा कि वो भी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट या एक बेसिक कॉस्ट में वो हमें उपलब्ध करा दे। तो बहुत जल्द उस ऐप को हम उनके माध्यम से, उनकी सहायता से अपने जिला बिलासपुर में भी लॉन्च करेंगे, सो दैट यहाँ पे भी हम
क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, लोग दूर दूर रहते हैं, किसी के टेरेन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, रास्ते का इशू है, तो हॉस्पिटल फ्रीक्वेंटली विजिट नहीं कर सकते, तो ऐसे हम हाउस होल्ड जाके ये सर्विसेज प्रोवाइड करवा पाएंगे और स्क्रीनिंग कर पाएंगे, और उनके लिए उनके घर के आसपास ही कैंप लगवा सकते हैं। तो इस ऐप को हम बहुत जल्द अपने जिला बिलासपुर में लॉन्च करेंगे, और ये भी एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल है कि कैसे गुड गवर्नेंस में आप इनिशिएटिव्स को रेप्लिकेट कर सकते हैं। एक स्टेट दूसरे स्टेट के अच्छे इनिशिएटिव्स को किस तरह से लो कॉस्ट पे अडेप्ट कर सकता है और उसको अपने जगह पे एग्जीक्यूट कर सकता है। तो So telemedicine again is something that has gained a lot of prominence, especially in the aftermath of the COVID. तो आप लोग अपने जिले में कुछ इस तरह का प्रयास कर रही हैं टेलीमेडिसिन के अराउंड? टेलीमेडिसिन हमारे भारत जिले में सरकार की ऑलरेडी बहुत सारे यहाँ पे, स्कीम्स हैं। हाँ, टेलीमेडिसिन ऑलरेडी ये जिला बिलासपुर में चल रहा है। यहाँ के जो हमारे प्रिजनर्स हैं, जेल है जो हमारा ओपन जेल है, वहाँ के प्रिजनर्स भी टेलीमेडिसिन के माध्यम से स्पेशलिस्ट से कम्युनिकेट करते हैं। हमारे बिलासपुर में एम्स है, तो हमारा जो रीजनल हॉस्पिटल है वो भी एम्स से स्पेशलिस्ट से बात कर सकता है अगर टेलीमेडिसिन के माध्यम से, अगर यहाँ पे स्पेशलिस्ट नहीं है तो। फिर हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है, और जो आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स है, वहाँ पे भी जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं वो भी कनेक्टेड हैं टू द रीजनल हॉस्पिटल। तो जो स्पेशलिस्ट हैं वो अपने सर्विसेज जो टेलीमेडिसिन के माध्यम से ऑलरेडी दे रहे हैं, लेकिन इसमें रीच बढ़ाने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सर्विस का बेनिफिट ले पाए। जी, एक पहाड़ी इलाके होने के नाते आई जी, थिंक बिल्कुल, टेक्नोलॉजिकल बहुत 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 इंटरवेंशंस स्कोप है टेलीमेडिसिन का। जी होल्ड 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 लॉट ऑफ प्रॉमिस। जी आपने एक और एक स्पेस लैब प्रोजेक्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जी रिसर्च किया, जी वो जी। क्या है निधि जी? ये स्पेस लैब प्रोजेक्ट है कि ये भी मैंने इनिशिएटिव है दूसरे स्टेट का जहाँ से हमने ये आइडिया लिया था, तो उस आइडिया को रेप्लिकेट किया हमने अपने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। तो इसमें हमारा विजन था कि हमें कोई ऐसा माध्यम मिल जाए जो हमें इसरो से कनेक्ट कर दे, और वहाँ की स्कीम्स को यहाँ पे बच्चों में एक ओरिएंटेशन क्लासेस ले, और डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करे, क्योंकि जो हमारी ज्योग्राफी की क्लासेस होती है पर्सनली स्कूल में भी मुझे लगता था कि बहुत बोरिंग है और मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। तो मैं जो अपने एक्सपीरियंस याद करती हूँ तो मैं उसी हिसाब से चीज़ों को यहाँ एग्जीक्यूट करने की कोशिश करती हूँ अपने फील्ड से, या अपने बचपन से जो भी आप चीज़ों से हिट रहते हैं या मोटिवेटेड रहते हैं, उस पर आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं ढूंढते हैं स्कोप की काम करें। तो साइंस में इंटरेस्ट जगाने का, बिकॉज आप प्राइवेट स्कूल जाओ या सरकारी स्कूल जाओ, साइंस में एक वह है, मतलब मैं भी जब स्कूल में थी तो हमारी लड़कियों का एक बहुत बड़ा ग्रुप था, हमारा कॉन्वेंट स्कूल था, गर्ल्स, हम लोग गर्ल्स स्कूल में पढ़ते थे, तो उसमें से सबने आर्ट्स ले लिया, कॉमर्स ले लिया, मैं अकेली लड़की थी जिसने साइंस लिया। और जब मैंने उनको फोर्स किया कि तुम भी साइंस लो तो कोई नहीं आया, क्योंकि सबको था कि साइंस नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत बहुत टफ होता है, बहुत टफ होता है। तो जो एक सेंसलेस और बेसलेस एक ये जो डर है लोगों के मन में, क्योंकि रीजन रहता है कि एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर हम उनमें इंटरेस्ट नहीं जगा पा रहे हैं बच्चों में, उनको इतना टफ क्यों लग रहा है, उनको समझ क्यों नहीं आ रहा है। तो अगर हम इस तरह के लैब्स खोलते हैं तो बच्चे जब देखते हैं तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप होता है और साइंस के प्रति उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है। और इस तरह के जो बेसलेस हमारे डर हैं कि साइंस बहुत टफ है, समझ नहीं आएगा, तो इसलिए भी ये लैब खोलने के पीछे ये भी उद्देश्य था कि साइंस के प्रति, स्ट्रीम के प्रति, और ट्रेडिशनल साइंस तो ठीक है, उसके अलावा भी आप इंटर के बाद इस तरह की फील्ड्स में भी इंटरेस्ट लीजिए, जैसे स्पेस रिसर्च हो गया। अब आप देखो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भी सब कुछ साउथ में ही है और उधर ही के ज्यादा डोमिनेट करते हैं बच्चे, साइंस में इंटरेस्ट ज्यादा है और स्पेस रिसर्च में ज्यादा। नॉर्थ में उतना नहीं है कल्चर, आप ट्रेडिशनली आप कंप्यूटर साइंस ले लेंगे बच्चे इंजीनियरिंग में या डॉक्टर बन जाएंगे, बट आउट ऑफ दी बॉक्स जो हमारे फील्ड्स हैं उनमें भी इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए स्कूल लेवल से ही अगर हम एक्सपोजर देंगे तभी बच्चों को वैरायटी मिलेगी और उसमें से वो चूज करेंगे अपना फ्यूचर। तो ये लैब का भी यही पर्पस है कि उनको हम स्पेस के बारे में बताएं, इसरो के बारे में बताएं, इसरो के क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं, 3D प्रिंटिंग क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, व्हाट इज विजुअल, ये क्या आजकल नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं दुनिया भर के, वो उनके बारे में भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेस क्राफ्ट क्या है, सैटेलाइट लॉन्चर्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, तो इन सब के बारे में रेगुलर उनकी जो क्लासेस होंगी, हम ये भी प्लान कर रहे हैं कि हम उनका इसरो में भी विजिट कराएं, वहां जाके वो पर्सनली देखें। तो ये बड़ी बात है कि गांव के छोटे से स्कूल से निकल के वो इतने बड़े लेवल पे एक्सपोजर पाएंगे, तो आई थिंक बच्चों में कहीं ना कहीं ये चीज हिट करेगी और वो मोटिवेट होंगे।
तो कितने स्कूल्स में ये लैब है या एक सेंट्रलाइज्ड लैब अभी है? ये हमने इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट किया था, तो हमने फिलहाल तो एक स्कूल में खोला है, बट इट इज नॉट लिमिटेड टू दैट स्कूल। बाकी भी अगल बगल के सरकारी स्कूल के कोई भी बच्चे वहां पे अपना शेड्यूल अपॉइंटमेंट लेके प्रिंसिपल से अपना फिक्स करके वो आके विजिट कर सकते हैं। जैसे अभी उनके एग्जाम चले हुए हैं, मार्च के बाद हम साइंस मेला लगाएंगे, तो साइंस मेले में सभी सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के बच्चे आमंत्रित होंगे। तो उसमें वो डिफरेंट चीजें हम वहाँ पे मॉडल्स लगाएंगे, डेमो देंगे। तो ये बच्चों के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो उसी स्कूल तक सीमित है। लेकिन हाँ, इस स्कूल के अलावा भी हमारे जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं वो चाह रहे हैं कि अब क्योंकि इसका काफी बच्चों में इसके प्रति पॉजिटिव हमें रिस्पांस मिला, एंड दे आर डिमांडिंग कि और भी स्कूल्स में खोला जाए, तो हम चाह रहे थे कि जिले में एटलीस्ट 4 स्कूलों में तो हम इसको खोल ही दें मिनिमम, So a और novel जल्दी कर। endeavor to inculcate a scientific temperament among children of today, for them to be able to appreciate various career options, and opportunities that lay. Very rightly said, Dr. Nidhi Patel, that there is, when it comes to a cultural orientation, जी, the scientific temperament, I think North India is slightly lagging, and such endeavors are certainly going to help a great deal in pushing the boundaries, pushing the limits for our children to explore more. Wonderful, kudos on that initiative, Dr. Nidhi. थैंक यू। Uh, उसके अलावा एजुकेशन के अराउंड, इज देयर एनीथिंग दैट you'd like to share with us? बिल्कुल। अभी हम कई डिफरेंट उस पे काम कर रहे हैं, हमारी प्लानिंग चल रही है और बहुत जल्दी इसको एग्जीक्यूट भी करेंगे। जैसे मैंने आपको वो कैटरैक्ट ऐप बताया, उसी तरह हम विमेन में 2 तरह के कैंसर्स बहुत प्रोमिनेंट हैं। क्योंकि मैं गायनी फील्ड से आती हूँ, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो विमेन स्पेसिफिक जो हेल्थ इश्यूज हैं उस पे मेरा ज़्यादा फोकस रहता है। और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं अपने लिमिटेड बजट में, और जो स्कोप है अभी हमारे पास जिले लेवल पे, तो अभी एक 2 टॉपिक्स पे हम काम कर रहे हैं। एक तो मोबाइल एंड पोर्टेबल कॉल्पोस्कोप्स। कॉल्पोस्कोप इज बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज फॉर स्टडिंग दी सर्वाइकल कैंसर। एक तरह से आप सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग करते हैं। और ये पोर्टेबल होने से क्या फायदा है कि आप दूरगामी एरियो में कैंप लगा सकते हैं और वहां पे विमेन का एग्जामिनेशन कर सकते हैं। इट इज टोटली नॉन इन्वेजिव, मतलब नॉन इन्वेजिव इन अ सेंस कि स्लाइटली इन्वेजिव नहीं बोलेंगे आप इसको, और बहुत ही लो कॉस्ट पे आप सिंपल इंस्पेक्शन करके सर्विक्स की कंडीशन देख के बता सकते हैं, और उस पर कुछ हल्के से स्टेनिंग करके आप देख सकते हैं कि क्या इसमें सर्वाइकल चेंजेस, कुछ कैंसर रिलेटेड चेंजेस दिख रहे हैं क्या। और दूसरा, ब्रेस्ट कैंसर इज वेरी कॉमन इन इंडिया एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में, तो उसके हम स्क्रीनिंग के लिए, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग या तो एक सेल्फ एग्जामिनेशन है और या फिर आपका जो है मैमोग्राफी एंड ऑल है, तो वो कॉस्टली अफेयर है मैमोग्राफी, और सेल्फ एग्जामिनेशन का अवेयरनेस अभी फील्ड पे ज्यादा है नहीं। दो उसके बारे में सरकार लगातार प्रयासरत है, हम कैंप्स लगाते हैं, हॉस्पिटल्स में भी बताते हैं, बट लेडीज इसको पूरी तरह से करते नहीं है, अगर आप स्पेशली रूरल एरियाज की विमेन की बात करते हैं तो उसके लिए हमने कुछ हम अच्छे कंपनियों का प्रोडक्ट स्टडी कर रहे हैं, और कुछ स्टेट्स में जो ऑलरेडी लॉन्च्ड है उसको स्टडी कर रहे हैं, उनके रिजल्ट भी अच्छे पाए गए। तो it is again a portable instrument which can be used to study the elasticity of the breast tissue, and it will give you a good result in terms of sensitivity। मतलब इनका 80 से लेके 90% तक सेंसिटिविटी है कि 100 में से 80-90 लोगों के में ये स्क्रीन करके एटलीस्ट इतना बता दे रहे कि टिश्यू में कुछ गड़बड़ है, तो इसकी फर्दर इवेल्युएशन इज रिक्वायर्ड। तो इस तरह के हम हेल्थ रिलेटेड और स्पेशली विमेन का, जिस पे विमेन पे जो इम्पैक्ट होगा उस पे हम लगातार काम कर रहे हैं, और होपफुली इस पे कुछ अच्छा हम करेंगे बिलासपुर में, कि हम इसको फील्ड लेवल पे इस स्क्रीनिंग मोडालिटी को ले जा पाए और ज्यादा से ज्यादा विमेन को इसका बेनिफिट दे पाए। जी, बहुत अच्छा, बहुत शुभकामनाएं आपको इस बारे में। अब एक दूसरे तरह का सवाल करते हैं, कंसिडरिंग दैट यू यू नो ऑपरेट एंड यू आर एन एडमिनिस्ट्रेटर इन ए हिली स्टेट, and where natural disasters are a growing concern across the globe. With climate change exacerbating or intensifying natural disasters, आपको क्या लगता है, what measures are being taken to integrate climate resilience into district development planning, और disaster preparedness strategies पे? हिमाचल प्रदेश जैसा
बेहतर जानती हैं कि एक जी डिफिकल्ट टोपोग्राफी ज्योग्राफी में है, जी और given the kind of events that we have seen in the recent past, हम्म, disaster preparedness is becoming a vital concern across the globe. So, बिल्कुल। as an administrator, what is your view on this, and what are some of the specific management issues that are being integrated into your schemes? If you could tell us. देखिए, डिजास्टर से संबंधित हर स्टेट का अपना डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होता है, जो हिमाचल प्रदेश का भी अपना है। उसमें जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत सारे पावर्स डेलीगेट किए गए होते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल के अपने प्लान बनते हैं, तो हर जिले के अपने प्लान होते हैं। फिर हम लोग जब बिलासपुर में आए तो हम लोगों ने भी उस प्लान को देखा, स्टडी किया और उसमें छोटे छोटे एडिशंस और किए। ऑलरेडी वो प्लान जो है वो बड़ा टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लान है और देयर इज लॉट ऑफ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन दैट प्लान। तो क्या क्या डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज होती हैं जिले लेवल पे, वो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी कि कैसे हम काम करते हैं। और ये जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होते हैं, वो स्टेट लेवल पे होते हैं। उससे रेगुलर हमें इंफॉर्मेशन, डेली अपडेट्स आती है। हर जिले में एक इमरजेंसी ऑपरेशन सेल होता है, डिजास्टर सेल होता है। वो कितना हाईटेक है उस पे वो बहुत जरूरी है कि हम उस लिमिटेड फंड में हम कितनी टेक्नोलॉजी प्रोक्योर कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं और ट्रेडिशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की नॉलेज को उससे कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। बट दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे टफ टेरेन है, तो यहाँ लोकल्स जो हैं सबसे पहले दे आर दी प्राइमरी रिस्पॉन्डर्स। वो सबसे पहले रिस्पॉन्ड करते हैं, इससे पहले कि प्रशासन रिस्पॉन्स करे। तो उनकी भी जो हम टेक्निक्स हैं कि किस तरह से वो रिस्पॉन्ड करते हैं, वहां तक इन्फॉर्मेशन कैसे जाती है, उसको भी हम स्टडी करते हैं और अपने प्लान में इनकॉर्पोरेट करते हैं, सो दैट हम बेस्ट यूज कर सके दोनों तरह के ट्रेडिशनल सिस्टम्स एज वेल एज मॉडर्न सिस्टम्स। तो जो हमारे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं, वो हमें रेगुलर डेली अपडेट्स आती है कि आज रेनफॉल का क्या प्रोडिक्शन है, स्नोफॉल, अगर स्नो एरिया है तो स्नोफॉल का क्या प्रोडिक्शन है। तो बिलासपुर में अभी जब हैवी रेनफॉल हुआ पूरे पूरे प्रदेश में, तो बिलासपुर में जो इम्पैक्ट आया वो रिलेटिवली कम था, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे रिजर्वायर है, डैम है, तो हमारे यहाँ ऐसे फ्लड का इशू उतना ज्यादा नहीं था। बट क्योंकि कंसिस्टेंटली 5 दिन रेन हुआ और बहुत ज्यादा हुआ, बहुत इंटेंसिटी बहुत उसकी काफी हाई थी, तो हमारा लैंडस्लाइड एरिया काफी था बिलासपुर में। तो हमारे रोड्स ब्लॉक हो गए, हमारे वाटर स्कीम्स अफेक्टेड हो गए, बिजली की लाइन प्रभावित हुई। तो इसमें जो हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्स है उसको हमने टैकल किया कि किस तरह से हमने मैपिंग करी कि हमारे कौन कौन से एरिया में सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड हुआ है, क्योंकि इतना लैंडस्लाइड बिलासपुर में पहले नहीं हुआ। तो इस बार जो हमारी स्टडी हुई तो हमने उसमें ड्रोन यूज किए, हमने बिग डेटा एनालिसिस किया कि पास्ट में क्या डेटा रहा है डिजास्टर का, तो हमने उसको उसको भी यूज किया। उसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज कर सकते हैं कि वो फ्यूचर प्रिडिक्ट करेगा कि आने वाले 10 साल में यहाँ पे क्या प्रिडिक्शंस हो सकती हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं जो यूज में लाई जाती हैं। और अभी हमारा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल बजट है उसमें भी हम कुछ ऐसे एडवांस इक्विपमेंट्स एंड ड्रोन्स प्रोक्योर कर रहे हैं जो हमें दुर्गामी एरिया तक मेडिसिन डिलीवरी कराने में हेल्प करेगा, या कोई भी इक्विपमेंट्स आप उसको, जैसे मेडिसिन हो गए, कोई और मशीनरी ट्रांसपोर्ट करनी है, तो हैवी जो अच्छे ड्रोन्स आते हैं अच्छे क्वालिटी के, वो हम प्रोक्योर कर रहे हैं अपने जिले के लिए। लाइफ डिटेक्टर्स आते हैं कुछ, जो जब आपका कुछ बिल्डिंग गिर जाती है, कोई बड़ा एरिया आपका गिर गया या लैंडस्लाइड हुई और नीचे आपको लग रहा है कि लोग दबे हैं, तो हम अगर वहां पे लगता है कि कोई अभी जीवित है, तो उसके अलग अलग सेंसर्स आते हैं। तो वो सेंसर्स भी हम प्रोक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं अपने डिजास्टर प्लान में, हमारा वो भी है। तो इस तरह से डिफरेंट एप्लीकेशन है टेक्नोलॉजी का, जिसको हम जिले लेवल पे यूज करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन। Excellent. So there is increasing reliance on technology, and rightly so. एंड क्योंकि अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका क्योंकि इंटायर हिमाचल कम्स इन अ वेरी अर्थक्वेक, क्या बोलते हैं, आपका सेंसिटिव जोन में आता है। तो हमारी जो भी नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, चाहे वो सरकारी हैं, इवन प्राइवेट में भी हम इंफॉर्मेशन जो है वो डिसमिनेट करते हैं कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजीज क्या हैं, क्या सेंसर्स हैं जो बिल्डिंग में लगा सकते हैं आप, और वो वीक एरियाज डिटेक्ट कर सकता है और टाइमली रिपेयर हो सकता है। तो ये भी एक एफिशिएंट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है, स्पेशली अर्थक्वेक जहाँ पे प्रोन एरियाज है वहां पे। जी, अ, अब टूरिज्म के बारे में बताएं, बिकॉज जब भी कोई टूरिज्म का सोचता है तो हिमाचल certainly features among the top states one could go. जी Now, what are the new priorities that the government of Himachal might be taking in order to ensure that ecology and tourism and this, uh,
raised awareness about disaster management, etc. इसके बारे में आपका क्या विचार है, और कुछ आप बताना चाहें अगर हिमाचल के बारे में? बिल्कुल, बिल्कुल। हिमाचल गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा अभी प्रायोरिटी है और अभी बजट में भी सीएम साहब ने अनाउंस किया कि वो किस तरह से हिमाचल को एज़ अ टूरिस्ट हब बनाना चाहते हैं। बट साथ में हमारी अपनी जो ब्यूटी है उसको भी प्रिज़र्व करना है हमें। डिज़ास्टर से जो डैमेज हो रहा है हमें उससे भी खुद को बचाना है, और टूरिस्ट जो यहाँ आते हैं उनको बेस्ट से बेस्ट हमें सुविधा देनी है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द इकोलॉजी एंड द एनवायरनमेंट। तो उसके लिए इको टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो आ रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन फ्यूल, ग्रीन जो आपकी व्हीकल, इस पे हम उनका फोकस है। और हमारा जो है ट्रेडिशनल जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का जो मैकेनिज्म है उससे शिफ्ट होकर हम सोलर और विंड की तरफ जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट का कार्बन न्यूट्रल की तरफ बहुत ज़्यादा इस प्रायोरिटीज़ हैं और फोकस है, जिसके लाइन में हमने ई बसेस भी, सरकार ने ई बसेस भी प्रोक्योर की हैं, और फेज्ड मैनर में जो टारगेट है कि हम धीरे-धीरे जो है पेट्रोल और डीजल को खत्म करके हम जो है इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड जो है व्हीकल्स को लॉन्च करेंगे और उसको ही पूरे स्टेट में प्रमोट करेंगे। ये उसके लिए गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए काफ़ी 50% सब्सिडी अनाउंस की है कि जो भी प्राइवेट बंदे हैं वो अपनी ई व्हीकल्स खरीदेंगे तो उसमें ई ट्रक्स हैं, ई बसेस हैं, ई टैक्सीज हैं, तो उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। तो इस तरह से हम ट्रेडिशनल सिस्टम पे हट के अब जो मॉडर्न सिस्टम है उसके तरफ जा रहे हैं, कि जैसे हमारा पोल्यूशन का जो प्रभाव है जिसकी वजह से अल्टीमेटली सब चीज़ों पे प्रभाव पड़ता है। प्लास्टिक का यहाँ पे ऑलरेडी बैंड है, हिमाचल में प्लास्टिक यूज़ नहीं होता। कुछ बॉर्डर एरियाज़ है वहाँ से भले थोड़ा बहुत वो हो जाता हो पॉपुलेशन, बट यहाँ पे प्रॉपर चलानिंग सिस्टम है और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। तो हमारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैंड है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि जो मेजॉरिटी रोड्स हैं अब जो नई बनेंगी उसमें आधे से ज़्यादा 50% किलोमीटर्स जो होंगे उसमें प्लास्टिक का यूज़ किया जाएगा उस रोड को बना कंस्ट्रक्शन करने में। ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं टूरिज्म से संबंधित कि हम उसमें वेस्ट मैनेजमेंट का स्पेशल ध्यान रखा जा रहा है कि कैसे हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे। जहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं ज़्यादा उस एरिया को हमने कैसे साफ सुथरा रखना है, तो उस पर भी गवर्नमेंट की प्लानिंग है। और आई थिंक आने वाले समय में हम टूरिज्म हब बन के उभरेंगे और साथ में अपनी जो रिजिलियंस भी और बढ़ाएंगे। एक्सीलेंट। हमने हेल्थ की बात की, हाइजीन पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि बहुत पूरे देश में अलग अलग जगहों में, एक हम लोग ग्रे मैटर्स कम्युनिकेशंस और नेटवर्क 18 न्यूज़ 18 जो ग्रुप है उसके साथ कैंपेन कर रहे हैं अबाउट हाइजीन एंड टॉयलेट क्लीनलीनेस, यू नो, as an administrator who is driving administration in a district, व्हाट इज योर व्यू कि हम और अवेयरनेस कैसे बढ़ा सकते हैं? बिकॉज स्वच्छ भारत मिशन के बाद काफी चीजें बदली, बट जी स्टिल बिकॉज आई सॉ महात्मा गांधी फोटो, और ये जो कैंपेन है जी जो टॉयलेट हाइजीन पे जो नेटवर्क 18 और हार्पिक चला रहे हैं, तो उसके वो गांधी इज द मॉडल, महात्मा गांधी इज द मॉडल, बापू के आदर्शों को लेके और हाइजीन को अवेयरनेस के अराउंड एक कैंपेन है। आपका क्या मानना है उस बारे में? नहीं, देखिए, बिल्कुल आपने महात्मा गांधी का नाम लिया और गांधी जी की फोटो भी यहाँ पे है, तो उनका एक कहना था कि जहाँ पे स्वच्छता है वहां प्रभु का वास होता है। तो इस सोच के साथ हमारी जितनी भी यहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन होते हैं या जो भी हमारे आईसीटी एक्टिविटीज होती हैं, जो भी हमारी आईसीटी एक्टिविटीज होती हैं उसमें स्पेशली हमारा फोकस है कि हम कॉलेजेस एंड स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस पे फोकस करें, बिकॉज वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं घर पे जाके अपने पेरेंट्स पे कि नहीं ये करना है, ये नहीं करना है। तो एक हैबिट जब छोटे से ही तो बड़ों को तो चेंज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, बिकॉज एक पर्सनालिटी बन चुकी होती है, एक माइंडसेट, एक कैजुअल अप्रोच आ चुका होता है, उसके बाद वो डिसिप्लिन में तब्दील होना इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम और एक कंसिस्टेंट उसके लिए एफर्ट चाहिए। लेकिन बच्चों में छोटे पर से ही अब जैसे आप देखते हैं कि हमारे बच्चे और हमारा जो बचपन था तो हमें कितना डिफरेंस है। मतलब हम लोग उस समय इतनी बातें नहीं करते थे कि सॉलिड वेस्ट अलग करना है और गीला कचरा अलग करो और सूखा कचरा अलग करो, उसमें भी प्लास्टिक अलग करो, उसमें भी
और चीजें अलग करो। बट अभी के छोटे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, वो नर्सरी के बच्चे भी आप देखेंगे कि अगर अच्छा स्कूल है जहाँ पे इस तरह के क्लासेस हो रहे हैं, तो वो खुद ही बताने लग जाते। नहीं, छोटा बच्चा है वो जाके डस्टबिन ओपन करेगा, और मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, वो अभी भी जाके डस्टबिन खोल के चीजें उसमें डाल के आते हैं। तो ये हैबिट छोटे से ही डेवलप होती है। तो हमारा जो अप्रोच है, जो जिले में हमारा प्रयास है, हम स्कूल लेवल से इस पूरे अभियान को चला रहे हैं, और बच्चों को किस ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी सेपरेट क्लासेस होती हैं, ड्रामाज होते हैं, प्लेज होते हैं, जिसमें स्वच्छता और सफाई पे बातें होती हैं। अच्छे ऐसे राइटिंग कंपटीशन होते हैं, क्विज होते हैं, या स्वच्छता पे बात हो गई, या खेल खेल में स्वच्छता प्रोग्राम करा दिया। इस तरह के बच्चे एक्टिविटीज करते रहते हैं। उसके अलावा हमारे जो पंचायती राज सिस्टम है, जो ग्राम सभाएं लगती हैं, पंचायत से जो भी स्कीम्स इंप्लीमेंट होती है, उनमें भी हमारा जो प्रयास होता है कि जैसे हम सोक पिट बनवा रहे हैं, हम सेग्रीगेशन जो यूनिट्स डेवलप करा रहे हैं, वो पंचायत लेवल पे उसके लिए अलग से फंड आता है, और अवार्ड भी दिया जाता है ऐसी पंचायतों को जिन्होंने स्वच्छता पे अच्छा काम किया है। तो इस पे हमने ऑलरेडी हमारी एक पूरा रूरल एरियाज के लिए ऑलरेडी एक प्लानिंग है, एक पूरा हमने सॉलिड एक अपना प्लान बना रखा है कि कितने पंचायतों को कैसे कैसे फेज्ड मैनर में अपने अपने एरियाज को कचरा फ्री करना है। मतलब उनको कलेक्शन सेंटर भी बनाने हैं, उनको हाउस टू हाउस कलेक्शन का एक मतलब एक सिस्टम डेवलप करना है, फिर कचरे को सेग्रीगेट करना, और फिर कैसे कंपोस्ट बना के उस गीले कचरे का उपयोग करना है, और प्लास्टिक निकाल के किस तरह से वो डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। इवन वो प्लास्टिक लाके एमसीज को दे सकते हैं, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को दे सकते हैं, जो वो रोडों में यूज कर सकते हैं। क्लीन प्लास्टिक होना चाहिए। तो इस तरह से पूरी प्लानिंग जिले के लिए हो रखी है, जिसपे काम भी चला हुआ है। No, thank you. And that is why we at Bureaucrats India and Grey Matters Communications are supporting this campaign called Mission Swachhata and Pani, because it's very, very timely, because there are a lot of hygiene is triggering a lot of health issues among children, women, and अमंग चिल्ड्रन। अब हाइजीन की आपने बात की, तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे भी हमारा एक स्टडी चली हुई है, उड़ान करके। उसमें हम बच्चों से कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं, हम उनसे, लड़कियों से, जिसमें उनकी आइडेंटिटी नहीं रिवील होगी, ना ही उनसे पूछा जाएगा, बट एक सोशल बैकग्राउंड, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, और कॉस्ट ऑफ, मतलब वो किस तरह का मटेरियल यूज करते हैं स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंसेस, क्या उन पे हेल्थ पे कभी इम्पैक्ट पड़ा है, हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड रहा है, अगर हॉस्पिटल में गए तो खर्चा कितना हुआ, सैनिटरी पैड्स पे क्या खर्चा लगता है। तो इस तरह की चीजें करके हम उसको स्टडी करके बहुत जल्दी एनआरएलएम को इससे जोड़ के, मतलब नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, उनको हम फंडिंग करके, हमारा जो प्लान है कि हम किस तरह से एक लो कॉस्ट सैनिटरी पैड्स जो हाइजीनिक होंगे, कॉटन मटेरियल से बने होंगे, प्लास्टिक से नहीं बने होंगे, तो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होगा, और बच्चियों को बहुत ही जस्ट 1/10 प्राइस में अवेलेबल हो जाएगा। मतलब जो पैड उनको 10 रुपए में मिल रहा था, वो 1 रुपए में अगर मिल जाए, तो इससे एनआरएलएम की महिलाओं का भी एक सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, इनकम जनरेट होगी, और साथ में बच्चियों को भी जो अभी तक नहीं यूज कर रहे हैं या महंगा पड़ रहा है जिनको, और जो ट्रेडिशनल सिस्टम यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स यूज कर रहे हैं या कुछ और यूज कर रहे हैं, तो या फिर यूज ही नहीं कर रहे हैं, वो स्कूल एब्सेंट, वही है कि स्कूल का नुकसान हो रहा है उनको, बच्चे 5-6 दिन स्कूल ही नहीं आ रहे। तो ऐसे केसेस में हमें लगता है कि हम उड़ान मिशन से इसको जोड़ के दोनों को डील करेंगे, और मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे भी हम हमारा प्रोजेक्ट चला हुआ है। एक्सीलेंट। मुझे याद आ रहा है वो मिशन स्वच्छता और पानी का जो थीम हम लोगों ने रखा है, हेल्दी हम अगर साफ रखें टॉयलेट हरदम, वेरी कॉमन, अगेन इंस्पायर्ड बाय बापू. You have been doing terrific work, Dr. Nidhi Patel. Reinforces our confidence in, bureaucracy, and that is what Bureaucrats India is designed to basically celebrate, bring out stories of good governance, of great work, and celebrate, of course, officers like you who do work day in and day out. Now, something about your personal, you are blessed with a wonderful twins, your daughters. And so, what is Dr. Nidhi Patel doing when she is not wearing the ADC hat, or when she is not sitting on a chair which is very hallowed, and When I'm not in my office and when I'm not doing any specific work related to this
charge, then either I'm reading my obs and gynae thing because I have to keep refreshing myself, because कभी कभी हमारे पुअर पेशेंट्स हैं इलाके के जो आ जाते हैं, तो अगर आप टच में नहीं हो तो फिर दिक्कत होती है कि ट्रीटमेंट बताने में. तो आई कीप रिवाइजिंग माई सेल्फ कि अपना जो कंटेंट है लेटेस्ट क्या चला हुआ है, व्हाट इज दी मैनेजमेंट गोइंग ऑन फॉर रिलेटेड टू डिफरेंट टॉपिक्स, या तो मैं उसको पढ़ रही होती हूँ या फिर मैं अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती हूँ, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल और बिकॉज ऑफ बिजी वर्क शेड्यूल उनके साथ टाइम नहीं मिलता है. तो फ्री टाइम में इट्स टोटली डेडिकेटेड टू माय किड्स. Great. And I cannot allow you to leave without giving a nice message for us, Bureaucrats India, because it is people like you who help us gain in prominence and helps us to believe in ourselves that what we are doing about celebrating positivity, bringing out good governance stories. I think that's the best thing. It's a kind of reward for us also, because डे टू डे लाइफ से हटके अगर आपके छोटे छोटे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं, जैसे आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वो हमारे लिए भी काफ़ी रिजुविनेटिंग होता है कि वी आर गेटिंग अप्रिशिएशन एटलीस्ट फॉर दी वर्क जो अदरवाइज रूटीनली मिस हो सकता है. तो और उसको कैसे आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, और उस तरह से मॉडल्स कैसे रेप्लिकेट होते हैं, बिकॉज जो मैंने इनिशिएटिव्स जो यहाँ लिए वो यूजली दूसरे डिफरेंट स्टेट्स के थे जिसने कहीं अच्छा काम किया होगा और वो मिस भी हो सकता था इजिली, बस बट बिकॉज कहीं कहीं पब्लिश हुआ है, किसी प्लेटफॉर्म पे डिस्कस हुआ है, इसलिए हमारे ध्यान में आ गया, अदरवाइज आई वुड हैव मिस्ड इट. जैसे आपका ई पारवाई हो गया, वो मैंने उसको कहीं अभिनव पहल पोर्टल पे पढ़ा था. तो और दूसरा ऐप था वो मैंने किसी इंडिया टुडे के आर्टिकल पे पढ़ा था जहां से मैंने पढ़ा. तो जब अच्छी जगहों पे इस तरह के ब्यूरोक्रेट्स के इनिशिएटिव डिस्कस होते हैं तो वो हमारे नॉलेज में आ जाते हैं और फिर उसको हम अपने जिले में मतलब इनिशिएटिव ले सकते हैं और उसको लॉन्च कर सकते हैं. तो आपका यहाँ पे जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि इनिशिएटिव्स पे आप डिस्कस करते हैं. तो हो सकता है इस वीडियो के देखने के माध्यम से 2-4 लोग और आइडियाज मिल जाए, वो कुछ और नया कर ले. तो आपका बहुत आई थिंक आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने इस मुझे प्लेटफॉर्म दिया जहाँ बड़ा अच्छा पॉजिटिव डिस्कशन हुआ और इससे हम भी मोटिवेट होते हैं. आई होप जो देखेगा 2-4 हमारे स्टूडेंट्स यूपीएससी एस्पिरेंट्स के शायद उन्हें टिप्स मिल जाए, कुछ हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो जूनियर्स होंगे शायद उनको कुछ आइडियाज हमें मिल जाए, और शायद कोई मुझे भी कहीं से कोई मैसेज करके कोई और अच्छा आइडिया दे दे. तो थैंक यू टू यू. नहीं, जरूर. This morning only I got a call from an IRAS officer from Salem saying that there is something nice we want to share with you, and उन सब ऐसे calls आके बहुत अच्छा लगता है. आप जैसे लोग आते हैं, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं. Yes, absolutely. Bureaucrats India is primarily designed to celebrate stories of good governance, अच्छी बातें लोगों को, because social media and the digital space is very chaotic, very noisy, at times ugly. और उसमें हमने सोचा कि एक कैसे पॉजिटिव चीज़ों को हमेशा आगे रखें. और आई एम श्योर देर आर मेनी हु आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम यू. वी आर गोइंग टू पुट दिस ऑन यूट्यूब एंड अदर प्लेटफॉर्म्स. आपका अभी एक लंबा सफ़र बाकी है आईएएस का, और आपसे हम लोग आने वाले दिनों में भी प्रेरणा लेते रहेंगे. Dr. Nidhi Patel, thank you so much for joining us and sharing your thoughts frankly and freely, and I'm sure which are going to be of great value. These are pearls of wisdom that not only your junior bureaucrats or maybe some seniors, but also millions of aspiring civil servants can take from here. Thank you, Jai Hind. And Dr. Anand, thank you. Thank you.